नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेएनआर के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। हम नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all of yours in China, ni hao. To all of yours in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaryako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel as yet, please do so. Channel ko subscribe. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. So Pradeep ji, very good news as far as economic indices are concerned. India is really and truly growing very, very fast. And the Prime Minister was in Ethiopia, he was in Oman, prior to that he was of course in Jordan. And with Oman there's a free trade agreement which has been signed, so which means about $3 billion worth of Indian exports will be effectively without a tariff. There will be no tariff on them, which is fantastic. And the most important thing is the car diplomacy. Netanyahu, Putin, now he found that in the Crown Prince yes, of Jordan, then he found it in Oman, and before that Ethiopia. Continuously, the car diplomacy. But Pradeep ji, what I was very impressed by was that Ethiopian band, वो जो वंदे मातरम गाते हुए, माशाल्लाह जबरदस्त यार, मतलब really lovely. But then I believe there's a huge ISKCON movement over there and all that. ये देखिए ना, ये वंदे मातरम गा रहे हैं लोग, बहुत ही जबरदस्त. ये और finally Mr. Modi raising his hands up and getting everybody to clap, which is fantastic, really and truly fantastic, lovely to see. 29th, as you said, 29th international award. The highest awards of each country. 29 countries have bestowed upon Prime Minister Narendra Modi their best awards, the highest awards. That's right. I don't think the Congress is going to be very happy with it. I don't think our friend Dr. Dhone, who's with us, is going to be very impressed with that. But all the same, let's go straight across to our guests. Let's go to our guests. We have a lovely, lovely panel of guests with us right now. Sameer Bhakre Sahab, I see you are driving. Bhakre Sahab, I can see you are wearing a seat belt. How are you, sir? No, I am not driving. I hope so. Thank you. I am in the car. In the front seat. Someone else is driving. Oh, thank God for that. Thank you very much, sir. Sameer Bhakre Sahab, BJP. Always a pleasure. Always. I was wondering. I thought maybe you are on a hands-free phone and you are driving yourself. Professor Rakesh Prajapati Sahab, how are you, sir? Namaskar, sir. Namaskar. Yes, sir. धन्यवाद. Namaskar. Great I am to see fine, you. and you, sir? Great to see you, sir. Great to see you. और क्या ठंड है सर, अभी तो माशाल्लाह क्या ठंड है अभी उत्तर प्रदेश में. कल तो पूरा मैच ही कैंसिल करा दिया सर आपने. लेकिन लखनऊ में मैच ही कैंसिल हो गया. लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा किसने ये प्लानिंग करी थी यार, लखनऊ में 7 बजे के बाद मैच रखने की. लखनऊ तो हमारा हेडक्वार्टर्स हुआ करता था जब हम सारा में थे, और वहां तो 6:30 बजे के बाद ऐसा कोहरा आता है इस टाइम पे, सबको मालूम होना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं. वो कहता है पंजाबी में, तुमरी गत में तुम ही जानी, ठाकुर दास सदा गुरबानी, मतलब जो तुम्हें करना है करो भाई, क्या कर सकते हैं. डॉक्टर ढोने, हाउ आर यू सर? Fine, sir. Fine. लवली टू सी यू डॉक्टर ढोने साहब. माशाल्लाह जबरदस्त सर डॉक्टर ढोने. लेट मी स्टार्ट विद यू प्रोफेसर प्रजापति साहब. प्रोफेसर प्रजापति साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है आपको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है. प्रजापति साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रजापति साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, आ रही है. मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस साल में प्रजापति समाज के खिलाफ उत्तर प्रदेश में तकरीबन 523 के करीब ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको कास्ट वायलेंस डिस्क्राइब किया जा सकता है. 523. उनमें से जो मुख्य हैं, जैसे अमरोहा में इंटरकास्ट टेंशन हुई अप्रैल 2025 में, मिर्जापुर में डिस्क्रिमिनेशन की एलिगेशन हुई कि एक बोरवेल जो था वो तोड़ दिया गया, उसके बाद जो नया बोरवेल बना वहां से जो प्रजापति समाज है उसको पानी नहीं पीने दिया गया, और अभी तक वो समस्या चल रही है सर मिर्जापुर की, अभी तक खत्म नहीं हुई है, ये भी बता दूं. और उसके बाद प्रतापगढ़ में एक 17 साल की बच्ची रिया प्रजापति, उस बेचारी ने आत्महत्या कर दी क्योंकि उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया. प्रजापति साहब, ये चल क्या रहा है? राकेश प्रजापति साहब, अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जैसी हमारी सरकार आएगी हम लोग जो हैं, जो दिवाली के दिए हैं और बाकी जो दिवाली के बर्तन हैं, जो हट्टियां होती हैं और बाकी जो बर्तन होते हैं, बाकी जो दिए वगैरह जिसमें जलाते हैं और उसके आप घड़े होते हैं, सुराही होते हैं, हम करोड़ों के तादाद में हम लोग खरीदेंगे प्रजापति समाज से.
ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये चल क्या रहा है सर? व्हाई इज दिस गोइंग ऑन? प्रजापति साहब प्लीज। सर एक्चुअली उत्तर प्रदेश में है क्या, उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार चल रही है वो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुद्दे को उठाने का कार्य किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिवाद जैसा नंगा नाच हो रहा है। 24 घटनाओं में, बड़ी घटनाओं में बुलडोजर चलने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उस 24 में 22 जो बुलडोजर चले हैं वो पीडीए परिवार पर चले हैं, पीडीए परिवार। लेकिन अब ये कफ सिरफ का मामला चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, हजारों करोड़ रुपए का। और उसके जो आरोपी हैं वो आरोपी जो हैं धनंजय सिंह जी हैं मुख्य आरोपी, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के सुझातीय हैं। अगर इसी की जगह पर, धनंजय सिंह की जगह पर कोई यादव होता, मुस्लिम होता या किसी भी पीडीए परिवार का, प्रजापति, कश्यप, पाल, नाई, धीवर, तेली, काहर, केवट, मुल्ला, राजभर, बिंद, निषाद, कोरी, कोई भी होता तो अब तक बुलडोजर चल गया हो। लेकिन आपने जो बात कही उस बात को मैं तो पूरे सर्कुलर पूरा गिना सकता हूं कि प्रजापति समाज पर एक सबसे बड़ी घटना मैं पहले भी आपकी चैनल पर बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी घटना अगर प्रजापति समाज के साथ हुई है तो 2 घटनाएं तो बहुत तगड़ी हुई है, जिसमें एक मैनपुरी के अंदर 5 प्रजापतियों को जिंदा जलाया गया था। प्रदीप जी 5 लोगों को जिंदा जलाया गया था। उन 5 लोगों में 2 माँ बाप थे, उनकी 2 जवान लड़कियां थी, एक 17 साल की, एक 16 साल की, और एक जो है उनका पोता यानी कि नाती था। 7 लोगों के परिवार में केवल 2 लोग उस बुजुर्ग की बेटे और बहू, पुत्रवधू 2 ही लोग बचे थे। 5 लोग जिंदा जले थे। 3 की तो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। उन दोनों लड़कियों की जो मृत्यु हुई वो लगभग 7 दिन बाद हॉस्पिटलाइज होने के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अफसोस की बात यह है प्रदीप जी, उन 5 लोगों के हत्यारोपी के खिलाफ एक एफआईआर नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, वो उनका मुख्यमंत्री जी का सुझाती था। और दूसरा मैं बताऊं, 48-49 दिन तक उस लड़ाई को हमने लड़ा। 5 लोगों की हत्या की कीमत प्रजापति समाज के क्या सरकार ने नाप लगाई? 5 लाख रुपए लगाई। वो भी कब लगाई? वो भी ऐसे नहीं लगाई जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। प्रदीप जी मैं आपको बताऊं, उस दिन जिस दिन शिलान्यास हो रहा था उस दिन मैंने काला दिवस के रूप में उसे मनाया था और काला दिवस के रूप में मना करके मैंने ट्वीट किया था। ट्वीट करने का प्रभाव ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन थोड़ा जागा, इंटेलिजेंस जागा, एलआईयू जागा, तब जाकर के 5 लाख रुपए मिले। आप सोचिए 5 परिवारों की 5 मौतों की कीमत 5 लाख रुपए, केवल इतना सस्ता। एक मैं तो कहता हूं भाजपा के किसी प्रवक्ता से वो अपनी ये वाली उंगली दे दे मुझे, 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा। नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आप सोचिए। इसके अलावा एक घटना और बता रहा हूँ। एक गांव है बसी, बागपत जिले में, बागपत जिले में। वहां पर लगभग 50 परिवारों के घर बुलडोजर से तोड़े गए थे। 5 प्रजापति समाज की, सभी प्रजापति समाज के थे। 50 घर को बुलडोजर से तोड़ा गया था। 5 बुलडोजर चलाए गए थे। आप सोचिए 50 परिवार कहाँ जाकर के रहेंगे। बाकी आपने कई घटनाओं का जिक्र कर दिया। बाकी एक खेता सराय में घटना हुई थी, 2 भाई थे, 2 भाई थे, दोनों भाइयों को मार दिया गया। ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता। मेरे पास तो पूरी फहरिस्त है इस मामले में। डॉक्टर प्रजापति साहब, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मैं यूपी में किया हूं, इसलिए इंडस्ट्री सब यहां पर आ रहा है।
आज उत्तर प्रदेश सबसे टॉप डेस्टिनेशन है स्टार्टअप के लिए और आईटी इन्वेस्टर्स के लिए। तो क्या सिर्फ बुलडोजर पे आप यानी एक ठीक है, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर उस पे भी चलाओ जो कॉफ सिरप के हजारों करोड़ घोटाला किए, तो वो तो एक बात है, बट ओवरऑल देखेंगे पिक्चर, इंडस्ट्रीज वहां पर आ रहे हैं बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। डॉक्टर प्रजापति साहब। राजीव जी, एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ये सरकार किस तरीके से आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करती है। भाई, आपके सामने एनसीआरबी के आंकड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बताने के लिए कौन से आंकड़े होते हैं? मुझे दूसरा आंकड़ा तो मुझे समझ में नहीं आता कोई। मैं ये कहूं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और एनसीआरबी के आंकड़े क्या बता रहे हैं? असलियत तो एनसीआरबी के आंकड़े बताएंगे ना। और एनसीआरबी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, आप बता दीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हर चीज में नंबर 1 है। हत्या में नंबर 1, दहेज में नंबर 1, लूटपाट में नंबर 1, महिलाओं में अपराध में नंबर 1, बाल अपराध में नंबर 1। अरे बताइए ना। और छोड़िए उत्तर प्रदेश ही छोड़िए, टॉप 5 प्रदेशों में सब 5 भाजपा शासित प्रदेश हैं जहां पर भाजपा का शासन है। अब योगी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन वास्तविकता ये है राजीव जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रदीप जी ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। एक चीज चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अधिकारी है ना, अधिकारी ऑफिसर्स, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे और हो, सीओ हो, कोई भी हो, एसडीएम, उनमें एक होड़ मची हुई है। किस बात की होड़ मची हुई है? कि कैसे भी करके हम शासन सत्ता के करीब पहुंच जाए, और हम चाहे उन्हें कितना भी गलत काम करना पड़ जाए, वो ये चाहते हैं हम योगी जी के करीब पहुंच जाए, हम सरकार के पसंदीदा ऑफिसर बन जाए। ये होड़ बची हुई है। इस होड़ में आए दिन आम जनता का, आम मानस का नुकसान अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। मेरा सीधा आरोप है ये। लेकिन सर, यहाँ पे मैं इसके पहले कि मैं समीर बागरे साहब के पास जाऊँ, एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से नेचुरली द नंबर ऑफ क्राइम्स विल बी द मैक्सिमम इन उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आप परसेंटेज को देखें ना, कंपैरिजन टू नेशनल एवरेज, सिर्फ कंपैरिजन करें ओवर से 1000 और 100 पीपल, वहां पर यूपी का जो क्राइम रेट है वो 25% कम है बाकी स्टेट से। बाकी जितने भी स्टेट हैं, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बाकी सब जगह हो गई, वहां पे 25% जरा कम है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन। लेट्स बी वेरी क्लियर, बिकॉज उत्तर प्रदेश हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन सर, यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। बट व्हाट आई एम वेरी वेरी शॉक्ड अबाउट इट एंड व्हिच इज रादर सैड इज, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हाई इज इट दैट द प्रजापति समाज इज स्टिल बीइंग टारगेटेड? जो प्रजापति समाज है अभी तक क्यों टारगेट हो रहा है, इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा आपके पास बात करने के लिए। लेकिन उसके पहले समीर बागरे साहब, I have some numbers here which seem to be absolutely fantastic. Sir, manufacturing has grown by 9.2%. 9.2%. The cumulative exports have reached $491.8 billion between April and October this year. Maharashtra is the richest state at 13.3% of the GDP, followed by Tamil Nadu, which is at 9% of total GDP. Telangana has the highest per capita income, which is 3.83 lakhs, and Karnataka has grown the maximum in terms of individual wealth. Now my point is this, with a consumer price index at 0.25%, that is less than even 0.5%, rightfully speaking, everybody should be very happy. Why are people still unhappy? Sameer Bagre sahab, please. देखिए राजीव जी, the only people unhappy are which are not in the power. उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी बाइट्स दे या मीडिया में कुछ कहे, लेकिन आपको मैं are very happy because they are seeing actual change in their lives. आप बताइए, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या आइसोलेशन में बढ़ रहा है? लोगों को रोजगार के अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है,
महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में इतना तेजी से विकास हो रहा है। आप मुंबई में बैठे हैं, डोले साहब अकोला में बैठे हैं, हम लोग नागपुर में हैं, तो आप देखिए हर जगह विकास हो रहा है। तो अगर हर जगह विकास हो रहा है तो लोग दुखी कैसे रह सकते? तो ये जो दुखी आत्मा है ये कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनको सत्ता से दूर रहने के लिए जैसे जलबिन मछली होता है वैसे वो छटपटा रहे। तो वो उनको क्या है, सत्ता और कांग्रेस ऐसा समीकरण उनको 55 साल उन्होंने भोगा है। उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल के लिए आई है, उसके बाद हमारा ही नंबर है। बट उनको ये पता नहीं है कि इंडिया हैज चेंज नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। देश इतने ऊंचाई से आगे बढ़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और नीचे नीचे जा रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस अपोजिशन होना चाहिए देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना मतलब आई वुड नॉट लाइक टू से दिस, बट वो अपनी ग्रेव खुद खोद रही। अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी जो है उनके अगर स्टेटमेंट्स देखें तो मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदुस्तानी उनको सपोर्ट कर सकता है। और मुझे तो बड़ी आश्चर्य की बात ये लग रही है कि 3 दिन हो गए ना कांग्रेस पार्टी से, ना प्रियंका वाड्रा से, ना राहुल गांधी से, ना सोनिया गांधी से कोई कंडेमनेशन आया है, कुछ आया है। यानी व्हाट काइंड ऑफ अपोजिशन इज दिस कि आज आपको इतने जो एक आदमी पीएमओ में रह चुका है वो ये कह रहा है कि भाई हमारे आधे घंटे में पूरी एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई, हमारा एक भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता है। यानी एक मतलब इतना बड़ा आदमी जो प्राइम मिनिस्टर जी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या उनका फ्रस्ट्रेशन है। तो मैं तो मानता हूं कि ये and he has stuck to his guns, by the way. Samir Bakre Sahab, he has not apologized. He has not taken back his statement. वो कहते हैं I stick by whatever I have said. The first day. The constitution gives me that right. जी, Samir Bakre Sahab. Pradeep ji, constitution doesn't give you right to abuse your country. Constitution doesn't give you right to question your army when actually you are speaking the language of the enemy nation. Yes. आप में पृथ्वीराज चौहान साहब ने 3 चीजें बोली है। उन्होंने एक बोला है कि हमारे आधे घंटे में पूरी एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए, हिंदुस्तान के कोई भी एयरपोर्ट से या मिलिट्री एयरबेस से हमारा एयरक्राफ्ट उड़ नहीं सकता था। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि हमारी जो मिलिट्री है वो 1 किलोमीटर भी मूव नहीं हुई, तो 12 लाख की जो मिलिट्री है उसकी जरूरत क्या है? तो आप ये इनको दूसरे काम पे लगाइए। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो भारत रत्न है, उन्होंने जो परमाणु का टेस्ट किया वो सबसे बड़ी गलती है आजाद हिंदुस्तान में। तो आज मुझे बताइए ऐसे स्टेटमेंट वो कर रहे हैं तो क्या वो आर्मी के जवानों को कांग्रेस पार्टी के वर्कर समझ रहे हैं कि इनसे कुछ भी आप काम करा लीजिए? और क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहने वाला आदमी उसको ये नहीं समझता है, वो कहते हैं कि सभी फाइल वाली एरियल होंगी तो आर्मी की जरूरत क्या है? तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ राजीव जी, प्रदीप जी, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। आप बताइए 4000 किलोमीटर की बांग्लादेश की बॉर्डर है, 3500 किलोमीटर की आपकी चाइना की बॉर्डर है, 3300 किलोमीटर की पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो आप ये जो चीज है यानी क्या आर्मी को आप ऐसा समझ रहे कि एक ही के लिए बाकरे साहब रहती? सो मुझे तो ऐसा बाकरे साहब, Rahul Gandhi ji, Bakre Sahib, can you hear me? Rahul Gandhi ji was in Germany in the BMW plant. Rahul Gandhi ji BMW plant Germany में थे, वहां टेस्ट ड्राइव वगैरह किए, इंटरैक्शन हो गया, पर कहते कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इज डिक्लाइनिंग. There's a decline of manufacturing in India. Now, how do you see that? Do you see that again? वही कि देश के बाहर जाके देश का अपमान करना, किस प्रकार से देखते हो बाकरे साहब? देखिए, राहुल गांधी जी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। उनको इंटरनेशनल टूल किट से जो कहने को बोला जाता है वो जाके बोलते हैं। वो बार बार विदेशी चले जाते हैं क्योंकि वो ट्यूशन लेते हैं विदेशी जो उनके टूल किट के जो लोग हैं उनसे कि देश के बारे में क्या गलत बोलना। अरे BMW के कार के शोरूम में आप गए और आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, और आज आपके राजीव जी ने जो आंकड़े बताए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक पृथ्वीराज चौहान है, एक राहुल गांधी है, ये कहाँ तक गिरने वाला? देश को बदनाम करना, देश को नीचा दिखाना। मैं आपका क्रिटिसिज्म मान भी सकता हूँ कि अगर देश का मैन्युफैक्चरिंग सही में गलत है या बढ़ नहीं रहा है,
लेकिन आप जब सब चीजें बढ़ रही है उसके बाद भी आप जाके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये तो आपके देश की जनता को सोचना चाहिए कि ये क्या मतलब ये कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये देश लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर द कंट्री नहीं है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द कंट्री है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देश के खिलाफ बोलना इनका पेशा और But इनका this is very strange. हमेशा से एक पैटर्न रहा है। जब भी अमेरिका जाते हैं, ये लेफ्टिस्ट लोगों के मिलते हैं, वहां से कुछ तो भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, फिर कहीं तो भी दूसरे जगह जाते हैं, यूके में कुछ बोलते हैं, कभी आप जर्मनी में गए। सो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को आज कोई सीरियसली नहीं लेता है। इट इज ओनली फॉर डिस्कशन इन सर्टन सेक्शंस ऑफ द मीडिया। 2 4 5 10 इनके कांग्रेस के लीडर ट्वीट्स करते हैं, वही आप ट्वीट्स देखेंगे कि उनकी चलने की स्टाइल दिखा देते हैं। उन्होंने आज लीडर आया है, शेर आया है, अरे शेर नहीं है, बिगी बिल्ली भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देश के जो रियल सवाल है उसके बारे में आप बात कीजिए और तथ्यों के साथ बात कीजिए। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े तो आप बताइए ना, कि अगर आप ऐसा सिर्फ जनरल स्टेटमेंट नहीं कर सकते ना राजीव जी, कि यू शुड कोट द फिगर्स, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू कोट द फिगर्स। आपके पास कुछ तथ्य नहीं है और आप बोलते जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता राहुल गांधी को मतलब क्या हो रहा है और क्यों कांग्रेस पार्टी को इतना नीचे ले जाना चाहते हैं। लेट्स आस्क धोनी साहब, ये क्या हो गया है पृथ्वीराज चौहान साहब को? क्यों ऐसा बोल रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में? इंडियन आर्मी के बारे में बोल रहे हैं, इतनी बड़ी इंडियन आर्मी की जरूरत क्या है, उसको कहीं और इस्तेमाल करो। यही बात बाय द वे वीके कृष्णा मेनन ने कहा था, एंड दे ट्राइड टू यूटिलाइज द इंडियन आर्मी इन मेकिंग रोड्स, इन मेकिंग डैम्स, इन मेकिंग हाउसेस 1962 वॉर के पहले, और उसके बाद 1962 में क्या हुआ आपको याद है। अब आप मुझे बताइए क्या हो गया पृथ्वीराज चौहान साहब को? सर आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, हैड नॉट नाउ, आई हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, बड़े मैच्योर किस्म के आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर धोनी साहब? सर ऐसा है जी बोलिए सर। कि उनके पास कोई शायद जानकारी होगी, तो सरकार ने उनको पूछना चाहिए कि आप किस बेस पे आप कर रहे हैं। उनको नोटिस देना चाहिए सरकार ने कि आप किस तथ्य के आधार पे या आप कौन सी जानकारी आपके पास है कि आपने ये बोला है। तो अगर एक नोटिस अगर सरकार ने दिए तो वो जवाब दे सकते हैं। चाहे वो बहुत जिम्मेदार आदमी है सर, कोई गैर जिम्मेदार है नहीं, और पब्लिसिटी में रहने के लिए वो कुछ गलत बोलते नहीं है। तो उनके पास जो होगी, देखिए एक बात तो पक्की है, देखिए उन्होंने भारतीय सेना के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला या भारतीय सेना के शौर्य के बारे में नहीं बोला है। उनका ऐसा कहना है कि भाई जब पूरा अपने जब ट्रम्प के कहने पे ही अपना सब चल रहा है, जो ट्रम्प बोलेंगे वही उसी तरह से हो रहा है। ट्रम्प बोलते हैं सीज फायर करो तो ये सीज फायर किए, तो वो उनको वो परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। हो सकता है ट्रम्प साहब ने बोला होगा कि मत करो युद्ध आप, तो मोदी जी ने बोला होगा रुक जाओ, ये होगा, दूसरा कुछ नहीं। अब वो तो जिम्मेदार आदमी है, गलत तो कुछ बोलेंगे नहीं। दोनों साहब पूरा पक्का दोनों साहब फर्स्ट डे वी लॉस्ट ऑपरेशन सिंदूर, पहले दिन में हमने युद्ध हारा, ये कहा है पृथ्वीराज चौहान साहब ने। तो कैसे आप नहीं, जैसे बाकरे साहब बीजेपी कह रहे हैं कि मोरल आर्मी का मोरल क्या नहीं, आप यू आर सन ऑफ द आर्मी मैन, क्या मोरल नहीं गिरेगा? क्या आपका मोरल नहीं गिरा जब कोई कहे कि आप पहले ही दिन में हार चुके? फर्स्ट डे यू लॉस्ट। सर ऐसा है कि ये इस बारे में जो है ना कि कोई अपनी खुद की पीठ थपथपाना कहाँ तक बराबर है। देखिए ऐसा है, अगर कुछ गलतियां होती है, देखिए सेना के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, या सेना ने कुछ गलत किया या सेना कुछ गलत करती है, ऐसा नहीं। सब लोग मरने के लिए तैयार है देश के लिए, देश के लिए सभी सैनिक मरने के लिए तैयार रहते हैं। उनके शौर्य के बारे में किसी को संदेह नहीं है। संदेह है अपनी विदेश नीति, और संदेह है कि मोदी जी जो ट्रम्प के कहने पे चलते हैं, और उन्होंने खुल के बोला कि हमने ये सीज फायर किया था, और ट्रम्प जो है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो इसका मतलब वो उनके फेवर में है। तो बात ऐसी है कि जब अपनी विदेश नीति गलत है तो उन्होंने विदेश नीति के बारे में बोला है। सर विदेश नीति के बारे में नहीं बोला है सर, फौज के बारे में बोला। एनीवे वी विल नॉट गो फर्दर इनटू दैट। आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। अभी राहुल गांधी जी वैसे बड़े अच्छे आदमी, आई रियली लाइक हिम, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। राहुल गांधी जी अभी BMW की फैक्ट्री में, ठीक है सर, और उन्होंने वहां पर यह कहा है, समीर बाकरे साहब सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। BMW की फैक्ट्री में जाके उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई है। सर BMW की हिंदुस्तान में जो फैक्ट्री है
वहां से 17,500 यूनिट हर साल निकलते हैं, 17,500 यूनिट्स। एक और आपको चीज बता दूं, हाल ही में फोर्स मोटर्स जो है चेन्नई की, BMW has a long standing partnership with Force Motors for the assembly of engines and gearboxes. In June 2025, the partnership celebrated the milestone of rolling out its 100,000th made in India engine. 1,00,000वां इंजन BMW ने बनाया है हिंदुस्तान में 1 साल में सर अभी। और उसके अलावा नई डेवलपमेंट जो हो रही है BMW टेकवर्क्स इंडिया, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, पंजाब हब, all the parts etc are going to be made in पंजाब। आप सर ये बताइए, आप BMW को जाके बता रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, जब BMW की खुद की मैन्युफैक्चरिंग हाई है और BMW कार्स की सेल इंडिया में, एशिया में, इसको जापान को छोड़ करके और साउथ ईस्ट एशिया को छोड़ करके सबसे ज्यादा है। सर ये क्या है, अब आप बताइए सर, डोने साहब प्लीज। सर ऐसा है, BMW कौन खरीदता है सर? सर आइए BMW सर बॉम्बे में आइए ना, देख लीजिए। इससे पैसे वालों की बात करेंगे। करेक्ट है, मुंबई में, it's a सर, आप luxury मुंबई car। में बैठे हैं, आप मुंबई की बात करते हैं, आप दिल्ली की बात करते हैं। Yes। नहीं है सर, आप जरा ग्रामीण भाग में क्षेत्र में आके I देखिए, agree with you। वहाँ क्या है, BMW कौन खरीदता है सर? बड़े लोग खरीदते हैं। तो उसकी- वो राहुल उसकी गांधी को manufacturing चिंता आप है ना। उनकी नहीं है, BMW को खरीदने वालों की चिंता नहीं है, राहुल गांधी को चिंता है गरीबों की। जी तो गरीबों के लिए जो बनना चाहिए क्या? उसकी चिंता है। जैसे कि तो for example- हकीकत है, देखिए राहुल गांधी सर उदाहरण के तो उदाहरण दीजिए ना सर। अरे ढोले साहब ऐसा नहीं है, गांधी उदाहरण दीजिए ना। फॉर बहुत एग्जांपल जिम्मेदार वे नेता है, उन्होंने कोरोना के वक्त कहा था कि ये बहुत बड़ा संकट सर है। ये तो आप उनको अलग अच्छे अलग से- जहां पर जा रहे हैं। अरे सर मैं छोटी सी बात आपके सामने कह रहा हूं कि कौन सी जगह है जहां मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। बाइसाइकिल्स की सेल ऊपर हुई है, लोअर एंड मोटरसाइकिल्स की सेल ऊपर हुई है, बैटरी ऑपरेटेड जो 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 डिलीवरी बॉयज यूज करते हैं वो सारे के सारे 2 व्हीलर्स ऊपर हुए हैं। आप मुझे बताइए, ऑटोस की 3 व्हीलर्स की सेल इतनी ज्यादा हुई है, सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग तो वो होते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं बंद हो जाएंगे ये। सर आप मुझे बताइए कौन सी जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, ये तो बताओ ढोने सर, साहब। ऐसा For है, example- जो बात राहुल गांधी को पता रहती है, हिंदुस्तान में किसी को, ना मोदी जी को ना मोदी सरकार को पता रहती वाह है। अंतर्यामी। ये तो हकीकत है। उन्होंने जो बोला, उन्होंने नोटबंदी के बारे में बोला कि ये बहुत बुरा निर्णय है, वो बाद में सिद्ध हुआ कि बहुत बुरा निर्णय है। उसके बाद उन्होंने कोरोना के वक्त बोला, सर, तो मैन्युफैक्चरिंग यही की भारतीय बात जनता करो पार्टी ना। और यही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे जेपी डोने नड्डा साहब। जी हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने बोले थे कि राहुल गांधी को ज्यादा समझता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बोला है, वर्ल्ड हेल्थ हु जो है WHO, उन्होंने बोला है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। lovely, चलिए। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला चिंता करने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी ने बोला कि चिंता करने की जरूरत है। राहुल गांधी का सही हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सही नहीं हुआ तो सर। कहने का राहुल मतलब, गांधी के पास बहुत सारे सोर्स है, दुनिया भर के सोर्स है उनके पास। तो अच्छे कहने लोग का हैं, मतलब IMF, वो दूरदर्शी वर्ल्ड वाले बैंक- नेता है, सर, दूर सर, की सर। देखने वाले नेता सर, है। प्रणाम, बहुत बार आपको सिद्ध हुआ। प्रणाम। और सुनिए, ये जो उन्होंने बोला था जातिगत जनगणना, सरकार को मानना पड़ा जातिगत जनगणना जी में। बिल्कुल दुरुस्त राहुल बात। गांधी ने जो बिल्कुल। बोला वही करना पड़ा। I agree जो with you, काले sir। कानून के खिलाफ राहुल गांधी ने आंदोलन किया था, वो भी सरकार को मानने आई मानना एग्री विद पड़ा। यू सर, उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स जो है अभी 9.2% पे है। मूडीज कहता है 9.2% नहीं 8% है। IMF बोलता है 8.5% पे है मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक बोलता है 8.9% पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है 9.2%। नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अपनी तारीफ करेगी ना। चलिए 8% भी मान लो। सर इट इज मच हायर देन इट यूज्ड टू बी। मेरा ये कहना, आप गाड़ियां नहीं देखते कितनी गाड़ियां, BMW की बात छोड़ दीजिए, मैंने BMW की बात जान करके इसलिए कही, अगर राहुल गांधी जी वास्तविकता में इतने ही चिंतित हैं सिर्फ गरीबों के लिए, तो वो लग्जरी कार मेकर और मोटरसाइकिल मेकर के प्लांट में क्यों गए? जर्मनी नहीं जाना चाहिए था, किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए था जहां पर लो कॉस्ट कार मिलती है। वोक्सवैगन में चले जाते। खैर आजकल तो वोक्सवैगन द पीपल्स कार, दैट इज आल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट ऑल आई एम सेइंग इज that you are saying that everybody's figures are wrong, only Rahul Gandhi is right. Mr. Bagre, you wanted to say something before I go to Professor Prajapati. Sir, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बागरे साहब। देखिए, आई कैन सिंपथाइज विद डॉक्टर डोने। डॉक्टर डोने एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो भी आज लड़खड़ा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी को डिफेंड करने में, चाहे राहुल गांधी जी को डिफेंड करने में। तो आई हैव माय सिंपथीज विद
विक्टिम, क्योंकि दोनों ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स किए हैं कि कोई भी एक नॉर्मल आदमी उसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो डॉक्टर डोने जी की तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, अदरवाइज ही स्पीक्स वेल ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। लेकिन आज उनको पृथ्वीराज चौहान का जब वो बोल रहे ट्रम्प साहब को लिंक कर रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान ने कुछ ऐसा ट्रम्प का बोला ही नहीं है। ही वाज टॉकिंग अबाउट द इंटरनल आर्मी और एयरफोर्स के बारे में। सो मुझे ऐसा लगता है, और राहुल गांधी अगर BMW में जाते हैं तो वो तो खुद ही एलिटिस्ट है, वो एक फैमिली डायनेस्ट है, तो वो तो ऐसे ही लग्जरी कार के शोरूम्स में ही जाएंगे ना। वो गरीबों की कार होगी या कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, वहां नहीं जाएंगे। तो बाकरे साहब, पृथ्वीराज चौहान ने कल यह भी बोला कि मराठी प्राइम मिनिस्टर होगा 19 तारीख को, कल। तो कल कुछ होने वाला है डेवलपमेंट, समीर बाकरे साहब, पृथ्वीराज चौहान जी। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी के जो दोनों स्टेटमेंट्स है, अगर आप मुझे समय दें तो मैं वो थोड़ा जो उन्होंने कहा है हमारे आर्मी के बारे में, बोलिए सर। तो मुझे उस पर कुछ कहना है। सर देखिए, ये व्यक्ति जो है वो 2010 से 14 के बीच में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था जी। ये व्यक्ति 2004 से 2010 के बीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इतने बड़े पदों पे रहा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कह रहा है, तो एक बहुत गंभीर सवाल पैदा होते हैं राजीव जी, प्रदीप जी, कि मुझे तो ऐसा लगता है क्या एक कहीं कौन से साजिश के तहत ये कहा जा रहा है। मतलब इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या इनके कोई विदेशी हैंडलर्स है जो इनके कहलाना चाहते हैं। क्या मुंबई हमले में जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री थे, तो क्या इनकी पोजीशन कुछ कॉम्प्रोमाइज हुई थी? क्या 2010 में कोई साजिश के तहत इनको महाराष्ट्र में भेजा गया था, जिसके बाद मुंबई और पुणे के काफी बम धमाके हुए? क्या घुसपैठियों के खिलाफ जो आज सरकार का सख्त रवैया, इसके कारण ये आर्मी का मुद्दा उठा रहे? देखिए, वे स्पेस कमीशन के मेंबर थे, वो एटॉमिक कमीशन के मेंबर थे, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने पूरे बड़े बड़े पोस्ट पे रहे। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसी कोई चीज कहता है विच इज नॉट डाइजेस्टेबल इवन टू अ कांग्रेस पर्सन, जैसे डॉक्टर डोने जैसे रिस्पेक्टेड प्रवक्ता है, उनको भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो देश की जनता को तो हो ही नहीं रहा। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये पृथ्वीराज चौहान जी की जो है ना सख्त, मैं तो मांग करता हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि ये किसके इशारे पर कह रहे हैं, आप देखिए कल पूरे पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पे पृथ्वीराज चौहान जी छाए हुए थे, तो क्या इनका मकसद है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि कल महाराष्ट्र से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। देवेंद्र जी फडणवीस ने सीधा कहा है कि हिंदू संस्कृति में हमारे जब फादर रहते हैं तो हम उत्तराधिकारी की बात नहीं करते। ये मुगलों की संस्कृति है कि एक फादर रहते हैं, उसको उसका उत्तराधिकारी डिसाइड होता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के और देश के नेता मोदी जी है, और ये जो बातें कर रहे हैं, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जी को कुछ हो गया है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। एक तो न्यूज में बने रहना चाहते हैं, या कांग्रेस पार्टी में एक कंपटीशन ऐसी हो गई है कि सबसे ज्यादा रिडिकुलस बात कौन करेगा वो फर्स्ट फैमिली से करीब जाएगा। तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन दोनों बातें पृथ्वीराज चौहान जी की जो है वो सर भी नहीं है ना उसका पैर है। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, रहेंगे, और हम सब उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। समीर बाकरे साहब, इसके पहले कि मैं राकेश प्रजापति साहब के पास जाऊं, एक छोटी सी चीज मैं सबके सामने रखना चाहता हूं। Perhaps Prithviraj Chauhan Sahab is talking about A. Trump's address to the nation on December 19th, and 2. the Jeffrey Epstein files, most likely which are going to be released tomorrow, which is December 19th. जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। जब जेफरी एप्स्टीन का धंधा चल रहा था माइनर गर्ल्स को लेकर के, सेक्स का जो धंधा चल रहा था, एक चीज आपको बता दूं, एट दैट टाइम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज नॉट इवन अलाउड टू गो टू द यूएस में जा भी नहीं सकते थे, ये भी आपको बताऊं। वो पहली बार यूएस में गए 2014 में, ये भी आपको बता दूं, आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 20 years or 25 years। तो for these guys to come out with this, I think is reprehensible and it is disgusting. Let's be very, very clear. For these guys even to talk about this or even to name this is absolutely terrible. एक तरफ पृथ्वीराज चौहान साहब, दूसरी तरफ संजय राउत साहब। एक जमाना था इसी किस्म की बातें, राकेश प्रजापति साहब, इसी किस्म की बातें आदरणीय सम्मानीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में हुआ करती थीं, और कौन करता था वो आपको मालूम है। और मुलायम सिंह जी कैसे थे मुझसे ज्यादा अच्छा आप जानते हैं। मैं तो उनको जानता हूं, खैर बहुत पहले से जानता हूं, जब से वो चौधरी चरण सिंह के साथ थे तब से जानते हैं हम लोग। तो
नेशनल फ्रंट के मेंबर थे, तब जब जेल भरो उन्होंने किया था तब से हम जानते हैं उनको। तो लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं सर, आप ये बताएं क्या ये शोभा देता है किसी को ये बोलना 19 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री चले जाएगा? क्या है कि वो फौज, हमारी फौज जो है हार गई, पाकिस्तान की ने ऐसी की तैसी कर दी। सर 12 एयरफील्ड हम लोगों ने उनके डिस्ट्रॉय किए जिसकी वो एविडेंस दी है। आज जितने भी अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। अब लोग ये कह रहे हैं, पहले अलग कह रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं। लेकिन हमारे ही लोग पृथ्वीराज चौहान साहब, एंड बाय द वे आई पर्सनली होल्ड, आई डोंट नो डॉक्टर ढोने विल कैन से इट पब्लिकली और नॉट, लेकिन किसी भी कांग्रेसी से आप महाराष्ट्र में पूछ लीजिए, अगर किसी शख्स ने कांग्रेस का सत्यानाश किया है महाराष्ट्र में तो उसका नाम पृथ्वीराज चौहान है। जब पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे, अजीत दादा पवार उनके डिप्टी सीएम थे, आपको मालूम है एक भी फाइल क्लियर नहीं करी उन्होंने, एक भी, नॉट वन फाइल ड्यूरिंग हिज एंटायर टेन्योर। इतने डर गए थे। अब आप बोले प्रजापति साहब, प्लीज गो अहेड सर। देखिए प्रदीप जी, सर मैं राजीव बजाज बोल रहा हूं सर जी। हाँ राजीव जी, जी जिस तरीके से अब ये चर्चा आपकी चल रही थी, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये 2 बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है। करेक्ट। और जिस तरीके से इनकी बैसाखी कमजोर पड़ रही है, बिहार के अंदर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया इन्होंने, लेकिन केवल मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय उनसे छीन लिया। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी जितने कमजोर आज हैं, पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुए। उसके बाद इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हें जो है स्पीकर का पद भी छीन लिया। आज नीतीश कुमार जी के पास ना तो स्पीकर का पद है, ना ही गृह मंत्रालय है, ना ही पुलिस है। बस इतना है कि अभी ट्रांसफर का उन्होंने सिस्टम उनके अपने पास रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं प्रदीप जी और राजीव जी, आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी एकनाथ शिंदे बन जाएंगे जिस दिन अमित शाह जी को मौका मिल गया और ऑपरेशन लोटस जिस दिन सफल हो गया, उसी दिन जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा। और जिस दिन जनता दल यूनाइटेड टूट गया, उस दिन नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन आप देख लीजिएगा केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी। निश्चित रूप से उस दिन नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि ये दोनों समाजवाद से निकले हुए लोग हैं, ये दोनों समाजवादी लोग हैं, ये तो बस कैसे भी करके वहां पर अपना समय काट रहे हैं। जिस दिन इनको मौका मिलेगा, उस दिन ये सरकार को गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर प्रजापति साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मेरा संकल्प है किसानों के साथ, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, इनके खिलाफ कोई अन्याय होने नहीं देंगे। जो फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, फर्टिलाइजर का जो फेक फर्टिलाइजर मार्केट में उतार है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून का उपयोग एनएसए लगा दूंगा, इंपोज एनएसए। डॉक्टर प्रजापति साहब, दैट इज योगी आदित्यनाथ जी प्रॉमिस टू द किसान। आप किस प्रकार से देखते हो योगी जी के इस बयान को? प्रदीप जी, जरा कुछ उत्तर प्रदेश में आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, बिल्कुल है, जरा उन्हें कल फोन करिएगा, ठीक है ना? और बस इतना पूछेगा कि डीएपी कब से नहीं मिल रही है, यूरिया कब से नहीं मिल रही है, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे एक बार पहले भी आपके यहाँ पर कहा था, और आपके किसी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए थे, पता नहीं कौन थे उस दिन मैंने खुद कहा था कि मैंने खुद डीएपी ब्लैक में ली है। लास्ट 8 महीने से प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की सबसे आवश्यक चीज है इस यूरिया और डीएपी। लास्ट पिछले 8-9 महीने से डीएपी और यूरिया उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो पता है क्या हो रहा है? नकली मिल रही है। अरे आप ना जाने कितने तरीके के वादे उत्तर प्रदेश के अंदर करते थे,
धरातल पर कोई वादा आपका नहीं उतरता है, धरातल पर कुछ नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अभी मैंने कप सिरप का तो आपने सुन ही लिया जी, होगा, जी, जी। हजारों करोड़ रुपए का। आज गोरखपुर में अभी अभी एक बड़े भारत के सबसे बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने अभी डाला है कि आज जो है गोरखपुर के अंदर 750 बोरी, गोरखपुर, अच्छा गोरखपुर जानते ही होंगे, गोरखपुर क्या है? जी मालूम है सर। गोरखपुर वो जगह है जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आते हैं। जी गोरखपुर वो जगह है जहां से उत्तर प्रदेश के भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। और गोरखपुर के से थोड़ी दूर है बनारस, बनारस से चिपका हुआ जगह है, जिला है जौनपुर, जहां पर कप सिरप की जो हजारों करोड़ रुपए के कप सिरप का घोटाला हुआ है। आज गोरखपुर के अंदर 750 बोरी जहरीला भुना चना बरामद हुआ है, 750 बोरी। आप सोचिए ये 750 बोरी जहरीला भुना हुआ चना अगर मार्केट में आ जाता तो कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती। आप ये घटनाएं गोरखपुर में हो रही हैं, जिसकी प्रदीप जी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, आप बताइए उस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है, तो आप सोचिए किस जगह का, जहां पर मुख्यमंत्री जी हर दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर हर तीसरे चौथे दिन जाते हैं, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ये है, तो आप सोचिए पूरे प्रदेश की सर ये बताइए, क्या होगी, क्या सर ये तो आपने जो बताया है, बाय द वे मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर ढोरे के बाद इसके बाद, लेकिन प्रजापति साहब जो आपने बताया ना 750 बोरी की जो आपने बात करी है, असली चीज तो आपने बताई नहीं सर। असली चीज भी बता देते। ये तो 750 बोरी वो है जो पकड़ी गई, जो निकल गई उसका क्या प्रजापति साहब? नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ राजीव जी, वही मैं कह रहा हूँ, ये तो पकड़ गई ना, और पता नहीं कितने महीनों से कितने सालों से चल रहा होगा, और अब तो 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार चलते हुए, ये तो पकड़ में आ गया ना, ये तो पकड़ में आ गया। उससे पहले ना जाने कितना चला होगा, कितना खप गया होगा, कितना लोगों ने खा पी लिया होगा, और कितने मर गए होंगे। अरे एक बात और कहना चाहूंगा राजीव जी, आप बड़े आज जो सदन में हुआ ना, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। बोलिए सर। आज सदन में एक सांसद जी बोल रहे थे, उत्तराखंड के सांसद हैं, हमारे पड़ोसी प्रदेश, जो हम पहले उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। मेरी बात से शायद राजीव जी आप तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे कि ये आज सदन में नहीं होना चाहिए था इस तरीके का, क्योंकि सदन जो है नियम बताता है, कानून बनाता है, अच्छे चीजों को लेकर के आता है, लेकिन एक अजय भट्ट जी हैं सांसद जी, आज वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, किसी गाय को दूध ना आता हो, किसी की बीवी से झगड़ा लग गया हो, भाई बहन में झगड़ा लग गया हो, माता पिता में झगड़ा लग गया हो, किसी की बीवी भाग गई हो, किसी के बच्चा नहीं हो रहा हो, तो क्या एक शब्द बोल दीजिए ये सब कुछ हो जाएगा? अरे मैं चैलेंज देता हूं अजय भट्ट जी को, केवल वो दिन भर वो शब्द का प्रयोग करते रहे, जय 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 करते रहे, देखें उनका पेट में रोटी बन जाए। नहीं मिल सकती सर इस देश में। और सबसे बड़ी बात ये थी, जिस समय ये बोला जा रहा था, उस समय पर कई वरिष्ठ मंत्री, यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी हंस रहे थे, ठाके लगा रहे थे, कई मंत्री, वरिष्ठ मंत्री ठाके लगा रहे थे। ये क्या हो गया इस देश को? किस ओर ले जाना चाहते हो आप देश को? किस तरफ ले जाना चाहते हो देश को? उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। देख करके आज राजीव जी मुझे ये देख करके बड़ा बुरा लगा। और सच बताऊं, मैं आने वाले भारत की तस्वीर देख रहा हूं कि इस देश की तस्वीर क्या होगी। इस देश में धर्म के सहारे ये लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, ये देख करके मुझे आज बड़ा तो मैं इसके पहले नहीं सर एक सेकंड,
इसके पहले, because I have a very important question for Dr. Dhone, that involves cough syrup and codeine, and what are the effects of codeine? I would like Dr. Dhone to tell us. But before that, आपने क्योंकि नीतीश कुमार जी की बात करी, क्योंकि उसके बाद वो बात जरा टर्न हो गई। नीतीश कुमार जी एक डॉक्टर से मिले, वो मेडिकल स्टूडेंट थी या डॉक्टर थी, डॉक्टर बन चुकी थी शायद, आई थिंक शी वाज डूइंग एन इंटर्नशिप, अपॉइंटमेंट लेटर बांटा, और वो अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे उनको। सर बुरके में थी, उन्होंने उनका बुरका हटा लिया। अरे ये क्या है प्रजापति साहब, ये क्या हो गया उनको? सर देखिए, आज नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उन्हें एक परमानेंट असिस्टेंट की जरूरत है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हमें उस हर धर्म के मजहब का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए। देखिए, वो महिला, अगर उस महिला ने नियुक्ति पत्र जरूर मिल रहा था, उससे पहले उसने इंटरव्यू दिया होगा, वो तो नियुक्ति पत्र मिल रहा था ना। पहले तो ये दिखावा नहीं होता था सर, पहले ये दिखावा नहीं होता था। नियुक्ति पत्र पहले घर भेजे जाते थे। जब वो महिला पेपर देने गई होगी तब नकाब में नहीं रही होगी, उसका इंटरव्यू होगा तब नकाब में नहीं रही होगी। चूंकि वो एक बड़ा कार्यक्रम था, सामूहिक कार्यक्रम था, ऐसी जगह पर थी तो नकाब में थी। पहले ये ड्रामाबाजी होती ही नहीं थी। हमने नौकरी पाई, हमारा तो साहब इंटरव्यू घर बैठे, ज्वाइनिंग लेटर घर बैठे आ गया। पहले ये ज्वाइनिंग लेटर घर बैठे दिए जाते थे। जिस तरीके से जब से भाजपा आई है और भाजपा ने आकर के जब से भाजपा आई है और भाजपा ने ये ज्वाइनिंग लेटर बांटने की प्रथा चलाई है, 3-3 हजार रुपए की नौकरी दे रहे हैं, 5-5 हजार रुपए की नौकरी दे रहे हैं, उसको दिखावा के रूप में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं भाजपा के लोग। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और उस महिला के साथ जो नीतीश कुमार जी ने किया, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई स्थिति हो नहीं सकती। Right, so let me go to Dr. Dhone. धोने साहब, खड़गे साहब ने कहा कि both नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह शुड रिजाइन, इस्तीफे इसलिए देना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड में जिस प्रकार से राहुल गांधी सोनिया गांधी को जिस प्रकार से घेरने का कोशिश किया, टोटल इलीगल डीड्स ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट हैज बीन एक्सपोज्ड। बोले कि पर्सनल लिबर्टी ऑफ राहुल गांधी सोनिया गांधी हैज बीन एनक्रोच्ड अपॉन। धोनी साहब इस्तीफा मांगा है, कितना दम है उस बात में धोनी साहब? सर ऐसा है कि ये इसके पहले भी हमने कहा था कि ये जो कर रहे हैं ये पूरा बेबुनियाद है। ये उनको बदनाम करने का उनका एक षड्यंत्र था। और ईडी ने जो कार्रवाई शुरू किए थे, तो ईडी का तो बस पूरे हिंदुस्तान में अभी क्या 2 लोगों को कार्रवाई हुई थी, यानी 2% भी लोगों को अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पहले बताया कि भाई आप ये राजकीय हेतु से प्रेरित लोगों को पकड़ते हैं, क्लियर बोला। और ये जो मामला है, ना इसने कोई पैसों की लेन देन है, ना कोई उसको लाभ का कोई पोस्ट नहीं, उसमें प्रॉफिट की कम नहीं मिल सकता किसी डायरेक्टर को। तो ये पूरा बेबुनियाद था आरोप, ये एक राजकीय षड्यंत्र था बदनामी के लिए कि भाई कोई इसमें नहीं फंसे। सोनिया गांधी पे कोई आरोप नहीं लगा सकते, राहुल गांधी पे कोई आरोप नहीं लगा सकते, किसी केस में उनको फंसा नहीं सकते, उनके खिलाफ कोई करप्शन का मामला बन नहीं सकता 10 साल में। तो इसलिए अब इनको बदनाम तो करना जरूरी है, इसीलिए नेशनल हेराल्ड का केस लगाया और कोर्ट ने बोला कि ये सब गलत है। तो ये तो हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ईडी उनके अंडर में काम करती है, तो उन्होंने बराबर बोले कि इन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए। हालांकि ये करेंगे नहीं, इन्होंने अगर मर्डर भी कर दिया, इनके करप्शन सिद्ध भी हो गया, तो ये इतने बेशरम लोग हैं कि ये रिजिग्नेशन देते ही नहीं। लेकिन तो ये तो जो खड़गे साहब जो बात करते हैं कि भाई उन्होंने बराबर डिमांड तो बराबर किए उन्होंने, लेकिन खड़गे साहब को मालूम है कितने बेशरम लोग हैं ये। लेकिन ढोने साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आप ही का कोई शख्स होगा वहां पे जिसने ये काम किया है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो मालूम है कि जब तक के प्रेडिकेट ऑफेंस रजिस्टर नहीं होता, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तब तक ईडी अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पे ईओडब्ल्यू ने अपना काम शुरू नहीं किया, ईडी पहले पहुंच गया। दे कांट डू दैट एनीवे। दैट्स और ये सर एक प्राइवेट केस भी है, आप सुब्रमण्यम स्वामी साहब ईडी ने खुद दाखिल करना है, प्राइवेट केस पे इन्होंने खुद दाखिल इंटरफेयर किया है, which is illegal. इलीगल है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट है सर। That's it.
That's it. अभी It's on that सुब्रमण्यम basis. स्वामी क्या बोलते हैं वो भी जरा देख वो लीजिए अलग पूरे बात है। हिंदुस्तान में। लेकिन सर मैं इसके पहले के समीर बागरे साहब के पास जाऊं, आई वांट योर ओपिनियन सर। इवन इन महाराष्ट्र ये कफ सिरप का जो मैटर है सर, ये सिर्फ यूपी का नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं सर, ये कफ सिरप में कोडीन मिलाते हैं, अल्कोहल मिलाते हैं, आपको भी मालूम है, आप डॉक्टर हैं सर वी नीड टू डू समथिंग। पार्टी लाइन से उठ करके आपको क्या लगता है यहाँ क्या ये, हाँ करेक्ट व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन सर, आप बताइए। ये सर इसमें जो है ना, ये है टोसेक्स, ये कफ सिरप है, और इसमें जो कोडीन है 10 mg आता है जी। तो ये जो कोडीन की वजह से है, वैसा नियम उसका ऐसा है कि आप इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे नहीं सकते। करेक्ट। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलता है नहीं है। इट्स नॉट एन ओवर द काउंटर ड्रग, इट इज नॉट। जब मुझे देखिए, ये मुझे दिया था जलील पारकर सर ने, लीलावती हॉस्पिटल के जलील पारकर, बहुत फेमस डॉक्टर है, तो उन्होंने दिया था। बाद में हमने अकोला में मांगा तो मिला ही नहीं, हमने बोला बुलाओ भाई ये, और प्रिस्क्रिप्शन मांगे तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है, तब कहीं मिला ये। तो ये आसानी से, जिसमें कोडीन है, ये आसानी से दे नहीं सकते। लेकिन अभी कोरेक्स हो गया, या ये जो कोरेक्स रहता है वो, और ये इसमें जिसमें कोडीन रहता है, उससे क्या नशा आती है, तो नशे के लिए उसका यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए, ये कंपनी वाले कर रहे हैं सर, और सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का काम है कि ये जितने भी इसमें कोडीन है कितने आए, हर मेडिकल स्टोर्स वालों से पूछना चाहिए कि आपके पास इसके हमको रिपोर्ट दीजिए, और जिसको दिया उसका नाम लिखना चाहिए कि किसको दिया है और कितने लोगों को दिया है। ये पूरा डाटा गवर्नमेंट ने मांगना चाहिए, क्योंकि ये नशा का काम कर रहे हैं सर लोग इससे। सर इट्स अ नार्कोटिक, कोडीन इज अ नार्कोटिक, यू कांट यूज इट, नॉट अनलेस इट ओटीसी, बट इफ यू हैव टू यूज इट, इसका मतलब आप काफी दर्द में होगे सर। आर यू ऑलराइट नाउ? बिकॉज़ दिस इज यूजुअली यूज्ड टू रिलीव हेल ऑफ अ लॉट ऑफ पेन। बहुत ज्यादा पेन होती है तभी इसको। हाँ बिल्कुल, ये खांसी के लिए होती है सर। बहुत ज्यादा खांसी आई, 10-12 दिन हो गए, खांसी बंद नहीं हो रही, उसके बाद देते हैं, इतना आसानी से देते नहीं है। ओनली अ स्पेशलिस्ट। और यहाँ के डॉक्टर लोगों ने सलाह भी दी है कि भाई ये आप इसका यूज मत कीजिए। करेक्ट। बहुत ही तकलीफ है तो कर सकते। That's very rare. I want to बाकरे साहब, जो खड़गे साहब का स्टेटमेंट है नेशनल हेराल्ड केस में, नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी's illegality has been exposed. खड़गे साहब कह रहे हैं कि both Modi ji and Amit Shah should resign. You have encroached on the personal liberty of Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, which cannot be restored. Dismiss this case. बोलिए बाकरे साहब। देखिए प्रदीप जी, नेशनल हेराल्ड केस में जो कोर्ट का फैसला है, उन्होंने सिर्फ टेक्निकल चीज पे बोला है कि ईडी की जो चार्जशीट है उसका कॉग्निजेंस हम इस स्टेज पे ले नहीं सकते, बिकॉज जैसा राजीव जी ने बोला वो एफआईआर होने की थी। उसके बाद एफआईआर हो चुकी है, ईडी इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दैट। दूसरा ऐसा है, मुझे बताइए कौन से कोर्ट ने ये कहा है कि भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी निर्दोष है? क्या उनके खिलाफ जो चार्जेस है कोर्ट ने ड्रॉप किए हैं? क्या कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस ड्रॉप किए हैं? क्या ये सच नहीं है कि 50 लाख में आपने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली है? क्या ये सच नहीं है कि आपने लोगों को जो शेयर होल्डर थे उनको अंधेरे में रखते हुए लिमिटेड शेयर होल्डर लेके आए? तो देखिए, ये जो टेक्निकल ग्राउंड पे अगर ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस नहीं लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में कोर्ट ने कुछ दोषी नहीं कहा है या दोषी कहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो एफआईआर हुई है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होगा, पुरानी चार्जशीट होगी, ईडी इंक्वायरी करेगी, और मतलब एक ऐसा केस है जहां पर एक स्मार्ट प्लानिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि भाई साहब ये आप जो प्रॉपर्टी पब्लिक की है वो आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स की कंपनी में डाल रहे हैं। तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में आता ही है ना। मनी लॉन्ड्रिंग में मतलब बेसिकली अक्वायरिंग प्रॉपर्टीज बाय इलीगल मींस। So acquiring assets by illegal means, sir, even though no money has changed hands. However, the property that you mentioned, by the way, according to one estimate, is 20,000 crores. It's not 2,000 crores. Bagre sahab, it is 20,000 crores. And number two, the court has also said very clearly, भाई इसको investigate करिए, उसके बाद आइए.
complete the investigation, then come back. But That is as our point. a central agency, पाकरे साहब, सेंट्रल एजेंसी ऐसे चूक कभी कर सकते क्या? यानी आपके पास कोई, पाकरे साहब, a central agency making such error of a huge magnitude, क्या आपके पास कोई एविडेंस नहीं? तो आपने फ्रेम अप करके जो सेंट्रल एजेंसी डेफिनेटली मालूम है जब प्रीडेटेड ऑफेंसेस नहीं है तो हम कैसे चार्जशीट फाइल कर सकते हैं? उसके बावजूद उन्होंने जाके फाइल कर दिया। इसके मतलब आपने जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को हर दिन बुला के, तो हाउ डू यू सी दैट बाकरे साहब? देखिए प्रदीप जी, ये तो स्टेटमेंट कोर्ट ने बिल्कुल नहीं दिया है कि देयर इज नो एविडेंस। कोर्ट हैज जस्ट टेकन इट ऑन द टेक्निकल ग्राउंड कि जैसा वो चार्जशीट का कॉग्निजेंस इस स्टेज पे नहीं ले सकते, लेकिन कोर्ट ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी निर्दोष है। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन, क्या आप मतलब यू आर अबाउट द लॉ? अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएगी, आपने मोदी साहब की 9-9 घंटे एसआईटी से इंक्वायरी कराई, तो क्या मोदी साहब बाहर आके रो रहे थे क्या कि भैया मेरे को क्यों बुलाया, मेरे को क्यों Not बुलाया? once. अरे Not भैया, even आपके राजे महाराजे नहीं है, देश के आप मालिक नहीं जी। है, आप कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट आपको रिलीफ देगी इसमें। और एक आधी एजेंसी की टेक्निकल गलती हो गई तो ऐसे तो अगर एजेंसी ही पूरी ये रहती तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं रहती। तो होता है टेक्निकल मिस्टेक, अगर एजेंसी से हुई है, कोर्ट ने उसको पॉइंट आउट किया तो एजेंसी करेक्ट करेगी। इसका but ये the मतलब court नहीं has है कि very क्राइम clearly- नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी चेंज हैंड्स चेंज नहीं हुई। Let me tell you very frankly, Sameer Bhagre Saab, in this case will be very difficult to prove. It will be almost impossible to prove. However, they are welcome to investigate. As the court said very, very clearly, please investigate thoroughly and come back and follow the procedure. अभी क्या है, आपने procedure follow नहीं किया, so the court effectively what is to be known over here is that court has not heard the case. Court has not heard the case and has not pronounced judgment in the case. There is no judgment in the case. Let's be very clear. What the court has said, investigation कीजिए, फिर चार्जशीट फाइल कीजिए, उसके बाद आइए. That's, I think that's fair enough, which is great. Now coming back to Mr. Modi. Modi साहब ओमान गए, इथियोपिया, Jordan, Ethiopia, Oman. Now, all the three countries have signed fantastic deals with India. But I'm very excited about, I don't know whether you know anything about it, $3 billion worth of exports from India to Oman are now going to be at zero tariff. Zero tariff, sir, for $3 billion worth of exports from India to Oman. That's huge. So is the case in Ethiopia, so is the case with Jordan. With Jordan also, we have more or less signed an FTA, that is a free trade agreement. Sameer Bhagre Saab, please go ahead. देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जानते हैं कि देश के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए वो ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन गए। और मैं तो कहता हूँ कि देश में कप सिरप से ज़्यादा अभी बर्नॉल की सेल बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे डायरेक्ट डिसेंडेंट जो थे मोहम्मद साहब के, उन्होंने मोदी जी को खुद ड्राइव करके पैलेस में और इधर लेके गए हैं, वैसे ही इथियोपियन प्रेसिडेंट ने भी किया हुआ है। तो हर जगह मोदी साहब का अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है। और यहाँ पर जो माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पूरे गल्फ कंट्रीज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये बंद कर देना चाहिए समाज के अंदर जो मतलब धर्म के बीच में लड़ाई करना, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ रहता तो आप मुझे बताइए, क्या जॉर्डन जैसी कंट्री, क्या ओमान जैसी कंट्री, क्या यूएई के पूरे कंट्रीज, क्या सऊदी अरेबिया, क्या ईरान हमारे साथ खड़े रहते? तो ये तो बहुत क्लियर है कि मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसके ऊपर उनका पूरा काम है। और ये काम पूरे देश की जनता मानती है और विदेशों में भी सरकारें मानती है। तो अगर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओमान में भी 1-2 बार गया हूँ राजीव जी। सो इट्स अ वेरी गुड कंट्री एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और हमारा बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग उनसे रिलेशनशिप है। And I'm happy that Mr. Modi is giving that much importance to that relationship, because lot of Indians are also there. So हमारे लिए भी एक डायस्पोरा बहुत बड़ा वहाँ पर है और बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटीज है। इट इज अ इमर्जिंग कंट्री and a counterbalance to Qatar. Yes. तो मेरा ऐसा मानना है जी। डॉक्टर प्रजापति साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पंकज चौधरी जी के अपॉइंटमेंट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष,
क्या पीडीए को एक मजबूत टक्कर दे पाएंगे? आप समझते हैं कि पीडीए के वोट्स को वो डिमिनिश करके अपने बीजेपी की तरफ ले आएंगे? उसके साथ जो जिस प्रकार से जी राम जी जैसे बिल जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गरीबों के लिए 125 दिन का हम और उसको अच्छा करके जो पेश कर दिया है, गरीबों को बहुत राहत। तो हाउ डू यू सी दिस? क्या बीजेपी का स्ट्रेटजी ठीक ढंग से जा रहा है और क्या खतरा है अखिलेश यादव जी के पीडीए फॉर्मूला को? प्रदीप जी, भाजपा के पिछले 10 प्रदेश अध्यक्ष में 8 पिछड़े थे। 8। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े, भूपेन्द्र चौधरी पिछड़े, स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े, जयराम सिंह जी पिछड़े। तो पिछड़े तो पहले से ही थे, इसमें नई बात क्या हो गई? पीडीए पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई आपने किसी सामान्य व्यक्ति को हटा करके पिछड़े को दिया होता तो चलो ठीक था कि साहब पिछड़े को दे दिया पीडीए पर। दूसरा मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप भी बता दें, भाई पंकज चौधरी का नाम एज ए सांसद तो लोग जानते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन कभी उनका नाम इस रूप में किसी कोई जानता हो कि पंकज चौधरी ने पिछड़े समाज की कोई आवाज उठाई हो, पिछड़े समाज के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो, पिछड़े समाज के लिए कोई संघर्ष किया हो, पिछड़े समाज के लिए जमीन पर उतरे हो, अपनी कंसिस्टेंसी के लिए उन्होंने कुछ किया है, वो ठीक है, वो तो मानते हैं भाई 7वीं बार सांसद है, कुछ किया होगा तभी सांसद है, लेकिन कुछ किया नहीं है। असलियत बताएं साहब क्या है जी? असलियत ये है कि योगी जी और हमारे जो पंकज चौधरी हैं इनकी आपस में बनती नहीं है, और दिल्ली और योगी जी के बीच में आजकल नहीं बन रही है, सब लोग जानते हैं। अमित शाह जी और योगी जी के बीच में नहीं चल रही है, बन रही है। इसीलिए अभी केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया गया, बिहार में जो मुख्यमंत्री का चयन था उसका अध्यक्ष बनाया गया। जो योगी जी के विरोध में हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा इसीलिए दी जा रही है कि कैसे भी करके यूपी की कुर्सी को कमजोर किया जाए, इसीलिए पंकज चौधरी जी को बनाया गया है। पीडीए पर कोई प्रभाव इनके पिछड़े होने से नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया भाजपा के पिछले 10 प्रदेश अध्यक्ष में से 8 प्रदेश से तक पिछड़े समाप्त हैं जी। लेकिन सर आप ये बताइए फाइनली के एज फार एज दी प्रजापति समाज इज कंसर्न, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जैसी हमारी सरकार आएगी कुम्हारों से हम करोड़ों की तादाद में दिए भी खरीदेंगे, बाकी सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो भी खरीदेंगे, आपको जो मिट्टी के लिए अलग अलग जगह हैं वो भी देंगे, कुएं भी देंगे, वो सारे जो प्रॉमिस किया गया था एक एक चीज अलॉट होगी कुम्हार समाज को। सर आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत क्लियर कर दिया वो करने वाले कुछ नहीं है, लग रहा है मुझको। इतने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? आप बताएं सर प्रजापति साहब। देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब भी जो भी कुछ कहते हैं वो हमेशा अपनी कसौटी पर खड़े उतरने का काम उन्होंने किया है जी। मैंने पहले ही बताया कि 17 जातियों के अनुसूचित जाति का जो मामला है केवल उत्तर प्रदेश में ही चलता है, और उत्तर प्रदेश में इसीलिए उत्तर प्रदेश में उसको कई बार प्रयास भी किए गए, हालांकि वो सफलता नहीं मिली है समाजवादी पार्टी द्वारा। और हमेशा जब जब सरकार आई है प्रजापति समाज को मान सम्मान देने का कार्य किया गया, हमेशा कैबिनेट मंत्री बनाया गया, हमेशा जो है एमएलसी वगैरह बनाया गया, दर्जा मंत्री बनाया गया, कई बार प्रजापति समाज को बहुत अच्छा सम्मान देने का कार्य किया। और हमेशा एक दो तीन टिकट तो पिछली बार भी 3 टिकट दिए थे, उससे पहले 3 टिकट दिए थे, हर बार 2 से 3 टिकट देने का काम करती है। आप महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र में भी 78 साल हो गए, 78 ईयर हो गए, प्रजापति कुम्हार समाज का आज तक एक विधायक नहीं बना, आज तक एक विधायक नहीं बना। तो कम से कम मैं जो अब बात इसलिए कह रहा हूं
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि 1000 कुम्हारों के 1 करोड़ दिए खरीदे जाएंगे, वो तो खरीदेंगे ही। साथ में हमारी लड़ाई जो है, मैं राजीव जी पहले ही बताऊं, मेरी लड़ाई दिए बनाने की नहीं है। मेरी लड़ाई मिट्टी के काम के लिए नहीं है, हालांकि वो हमारा प्रोफेशन है, ठीक है। मेरी लड़ाई है विधायक बनने की, मेरी लड़ाई है सांसद बनने की, मेरी लड़ाई है मुख्यमंत्री बनने की, मेरी लड़ाई है संवैधानिक पदों पर जाने की, अच्छे पदों पर जाने की, कि हम लोग जाएं पढ़ लिख करके उन पदों पर बैठे जहां से नियम कानून बनते हैं और जनता के कार्य किए जाते हैं। Right. So let me go to Dr. Dhone. Dr. Dhone साहब, one final word Yes, from sir. you. Dr. Dhone साहब, राकेश प्रजापति जी, thank you very much for joining us, sir. So real pleasure talking to you. Dr. Dhone, कल क्या होने वाला सर? 19 दिसंबर। नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रजापति समाज के बारे में जो बोल रहे हैं, जी तो योगी जी क्यों नहीं कर रहे हैं उनके दिया अच्छा कुछ? जी क्योंकि उनके जो विचार है, सनातन धर्म के जो विचार है ना, इसमें शूद्र समाज है सर, ये प्रजापति समाज, तो वो उनकी विचारों पे चलते हैं, यही है, बाकी सर, कुछ नहीं। ठाकुर नहीं है वो, इसलिए नहीं, वो प्रजा ठाकुर नहीं है, कुमार और है, कुमार, ये पॉटर। शूद्र समाज है, पॉटर जो प्रजापति, जो घड़ा बनाते हैं ना, चातुर्वर्ण्य के घड़ा। हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, तो वो हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी हर जो समाज सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र है, फिर कोई राजा भी रहे तो उनको जो है उसी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट करती है। लेकिन फिर यहाँ पर क्या है, मुंबई में, महाराष्ट्र में अभी तक हम लोगों ने आज तक कभी किसी प्रजापति को पार्लियामेंट में नहीं भेजा सर, आज तक नहीं भेजा। कुमार समाज इतना बड़ा है यहाँ पे, तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोग हैं यहाँ पे प्रजापति समाज के महाराष्ट्र में। आज एक तक थे सर, आज तक रत्नाप्पा उनको कुंभार भी थे, नहीं मुझे याद है। नहीं, वो उनको कभी एमपी नहीं बनाया सर। हाँ, एमपी ने। आप बिकर गए प्रज्ञा नहीं सर, साठव, ऐसा है, छोटे, हाँ क्या बोले प्रज्ञा सर? साठव भी छोड़ के आपको गए। धोने साहब, आपके पार्टी बिकर रहे, एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं आपको, साथी कि सर, ऐसा है। एमएलसी सब कुछ दिया था आपने, फिर भी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे सर? देखिए, राजू सातव जो थे, उनको युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था पार्टी ने जी। हालांकि उनमें गट्स थे, बहुत अच्छे नेता थे, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया युवक कांग्रेस का। बाद में उनको लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा में जीत गए 2014 में। 2019 में उन्होंने बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुझे गुजरात का देखना है, तो गुजरात के इंचार्ज थे, उनको राज्यसभा में लिया। उसके बाद उनका जो निधन हुआ, उसके बाद उनकी पत्नी प्रज्ञा सातव को विधान परिषद में लिया गया। हालांकि उनका 1-1.5 साल का टर्म था, तो इसलिए उनको 6 साल पूरे मिले नहीं, इसीलिए उनको फिर 1 साल का वो मौका मिला पहली बार, और दूसरी बार उनको पूरा मौका नहीं मिला 6 साल का, इसलिए दूसरी बार उनको पिछले साल ही सर उनको किया था। उनका 2030 तक था और 5 साल उनके बचे थे, तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया। अब ये इसीलिए हुआ कि कांग्रेस के 8 सदस्य थे विधान परिषद में, और 78 में 10% का जो रहता है, 10% आपके अगर सदस्य है तो आपको विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता का दर्जा मिलेगा। तो 78 के 10% है 7.8, 7.8 का मतलब है 8, तो 8 सदस्य थे, तो उनको बनाना जरूरी था। कांग्रेस का सतेज पाटिल साहब का नाम दिया था, उनको विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद का बनाना जरूरी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना विधानसभा में किसी को विरोधी पक्ष नेता पद देना चाहती है, ना विधान परिषद में देना चाहती है। इसीलिए उन्होंने देखा कि कोई एक अगर उनका आदमी, उनका मेंबर अगर फूट के आता है, पार्टी छोड़ देता है, तो उनके साथ बनेंगे। अब साथ बनने के बाद तो बोलेंगे कि नहीं, अभी तो आपके साथ ही है, नियम के हिसाब से तो आप बन नहीं सकते, आपका विरोधी पक्ष नेता हम बना नहीं सकते। तो इसीलिए उनके 5 साल रहने के बावजूद भी उनको मजबूर किया कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। उनको कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोलती है, क्या गलती हुई कांग्रेस की? उनके पति को राज्यसभा में लिया, उनके पति को लोकसभा में जिता के लाया, उनके पति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया युद्ध कांग्रेस का, उनको 2-2 बार विधान परिषद में भेजा। अब इसके अलावा पार्टी और क्या कर सकती है? और उनकी सास जो है, उनकी सास को मंत्री बनाया था, रजनी सातव को। मतलब ये हुआ कि आप जो मर्जी कर लीजिए,
लोग तो जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, कुछ जा भी रहे हो तो जाए। दो लोग देख भी रहे, आप देखिए, जी, कमेंट देखिए दिख रहा है, आप। दिख रहा है, वो जो अखबारों ने जो दिया है दिख कि रहा है, दिख प्रज्ञा रहा है। सातव छोड़ के गई, उसके नीचे कमेंट आम पब्लिक के हैं। जी देखिए, बिल्कुल। एक भी जो है सोशल मीडिया में एक भी शख्स प्रज्ञा सातव के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा। और दूसरी चीज ये है, जो प्रजापति समाज के बारे में बोल रहे थे उस वक्त, क्या है कि चले गए राकेश प्रजापति जी, वरना मैं एटलीस्ट ये पॉइंट आउट कर देता कि गायत्री प्रजापति प्रजापति समाज से हैं, और धर्मवीर प्रजापति अभी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, प्रजापति समाज की जो जो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक के कोई कम्युनिटी अपने आप को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं करती है, तब तक उसकी बात नहीं सुनी जाती है। सर, माँ भी दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है सर, अगर रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, तो कौन कुछ करने वाला है। सीधी सादी बात है। जैसे आपका है, हम तो बार बार बोलते हैं डॉक्टर ढोने को सबसे पहले तो आप नेशनल स्पोक्स पर्सन बनाओ, दूसरा डॉक्टर ढोने को एमपी बनाओ, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं। अब डॉक्टर ढोने जो हैं वो बोलते ही नहीं है कुछ, तो क्या करें अभी उनके बारे में। हमें अब आपसे बार बार बात करके आपको चढ़ाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, जरा चिल्लाइए, चीखिए जरा थोड़ा सा। एनीवे, थैंक यू सर। और दूसरी चीज ये है कि मुंबई शहर में तो एटलीस्ट बीएमसी में इट्स वेरी गुड, द कांग्रेस इन माय पर्सनल ओपिनियन इज फाइटिंग अलोन। आप अकेले लड़ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। इससे मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में पार्टी किस जगह पर है, कितना परसेंटेज ऑफ वोट आपके साथ है, कौन से आपके वोटर असल में हैं, सो यू कैन बिल्ड ऑन इट। तो ये लास्ट जाते जाते जी राम जी बिल पे कुछ कमेंट करना चाहोगे? मनरेगा अब गया, अब जी राम जी बिल गया, जी राम जी, और मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं उसके लिए कि हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है गरीबों के लिए। पक्का मतलब महात्मा गांधी का नाम 125 दिन नौकरी, महात्मा गांधी का नाम बाहर। मतलब बापू सर, हमारा इंस्पिरेशन। महात्मा गांधी का नाम उन्होंने निकाल दिया, तो अब ये बापू कर दिया, पूज्य बापू। जी। अब लोग तो आसाराम बापू को भी बापू बोलते हैं। जी, शायद उन्हीं की बात कर रहे हैं, पता हाँ? नहीं। हाँ हाँ, और हो वो सकता है। मोरारजी बापू को भी बोलते हैं, जी। मोरारी बापू, जी। आसाराम बापू। तो शायद मोदी जी के दिमाग में आसाराम बापू होंगे कि भाई आसाराम बापू के नाम से कराओ, बापू बोलेंगे, तो फिर महात्मा गांधी का हटा दिया, बापू लगा दिया। अब कौन से बापू? क्या बापू एक ही शख्स है? इनके तो लोग बनाए इन्होंने बापू बापू, ये मुझे लगता है कि आसाराम बापू को सामने रखते हुए उन्होंने नाम दिया होगा मोदी। राइट, थैंक अब यू ये कल सर। मालूम पड़ेगा क्या है। थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर ढोने, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल नेशन नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें भैया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. And from both Pradeep ji and myself, that's just about it. And tomorrow is December 19th. We'll see what happens. If anything happens, I doubt it very much. If anything will happen. And Prithviraj Chauhan Saab really and truly must apologize for what he has stated, and it is absolutely terrible. All what we he has consider stated. a joke. I mean, जो पहले भी एक सही था कि he wasn't. No, I'm not talking about December 19th. I'm talking about what he said about the Indian Air Force. That's- However, if the Indian Air Force had Nobody become can non-functional or non-operational within the first half an hour, then how did we manage to officially destroy 12 of their airfields and 7 of their terrorist headquarters? Pakistanis, of course, say that we hit 19 of their airfields. ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे. In fact, Shahbaz Sharif Saab, when he was in Tajikistan, he himself said that as we were getting ready to hit back at the Indians, at 4 o'clock in the morning, we were hit with a BrahMos missile at Noor Khan Air Base in Rawalpindi. Yes. ये Prime Minister Shahbaz Sharif Saab की statement है. But Prithviraj Chauhan Saab will not even give cognizance to that. And as far as the whole of Pakistan is concerned, they are cheering, they are applauding. My point is, why is it that Mr. Rahul Gandhi, Mr. Prithviraj Chauhan and people like that, why is it that they are giving ammunition, more and more ammunition to the Pakistanis? Up I to mean, them. This is against national interest also. I mean, if Congress believes nation first, national interest is supreme, Rahul Gandhi himself has praised the armed forces for the great fierce battle that they fought. I give credit to the armed forces, that's what he said. But giving such a statement, are you not demoralizing the armed forces? This is the first time such a thing has happened. No other leader has ever said this. Nobody has said this, apart from this gentleman, Mr. Prithviraj Chauhan. Now, either he is on very strong medication, Pradeep ji, या तो बड़ी-बड़ी दवाई पे हैं, or he has grown old. I still remember when he was the chief minister here,
सिर्फ एक फाइल क्लियर हुई थी सर, वो किसकी फाइल है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में और दुनिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिल्डर हैं, उनकी फाइल क्लियर हुई थी बस, और किसी की फाइल क्लियर नहीं हुई सर पृथ्वीराज चौहान साहब के कार्यकाल में। तो मेरा ये कहना है पृथ्वीराज चौहान साहब क्या कर रहे हैं आप, मतलब ये तो I am really disappointed. For a matured and balanced person like yourself, I agree. You are very scared of, approving projects and doing all sorts of things. Or rightfully speaking, it was the worst possible choice to make him Chief Minister of Maharashtra after you removed Ashok Chavan साहब on the small matter of a flat. एक फ्लैट को लेकर के आपने अशोक चौहान साहब को बाहर कर दिया, मतलब हद होती है यार। This is like terrible. Anyway, जो बाकी कुछ बचा था कांग्रेस का वो इन्होंने ले लिया यार। Congratulations, Prithviraj Chauhan sir. God bless you. That's all that I can say. But it's absolutely terrible. Absolutely terrible. But really impressive what Mr. Modi has done. The visit to these three countries, absolutely fantastic. And Yogi Adityanath जी जैसे बोल रहे हैं कि भैया आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत फर्म तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने हैंडल कर लिए। और बार बार जो एक बार फिर मैं बता दूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो लोग कोट कर रहे हैं ना प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश जो है उसमें सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है प्रदीप जी, लिहाजा वहां पर क्राइम भी सबसे ज्यादा ही होगा, सीधी बात है। करोड़ों की तादाद में है, पता नहीं कितने करोड़ की पॉपुलेशन है, मतलब आई कैन चेक इट आउट एंड टेल यू ऑफ कोर्स। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है इतनी बड़ी है, नेचुरली द क्राइम आल्सो विल बी द हाईएस्ट, बट पर कैपिटा यानी पर 1 लाख जो क्राइम है, इट इज फार लोअर देन द नेशनल एवरेज। 2.21% है सर नेशनल एवरेज जो है, यूपी में 0.34% है। सो यू हैव टू टेक द नेशनल एवरेज, यू हैव टू टेक द परसेंटेज, यू कांट टेक द फैक्ट दैट इतने ज्यादा लोग थे। अरे भाई कहां है माफिया अभी, कौन सा माफिया डॉन, किसके बारे में आजकल बात होती है यूपी के बारे में बताइए आप मुझे। A sense of feeling also has to be there. एक तो statistics है, when you be the, how are the people feeling out there? Are the people feeling safe and secure? Are the women feeling safe and secure? That's right. Are the women going to the BPOs unafraid and late night shifts? So all these things count. I mean, that's where you are. Sir, at the moment, the population of Uttar Pradesh is 24 crores 63 lakhs. 24 crores 63 lakhs है सर, 27,000। 24 crores 24 करोड़ 63 लाख 27,000 ये है अभी पॉपुलेशन। एक्चुअली क्या है कुछ मालूम नहीं है, आई थिंक इससे ज़्यादा होगी। तो मेरा ये कहना है कि इसमें क्राइम अगर ज़्यादा है तो होगा ही ना सर। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन इससे कहीं 20 के 30% कम है, बड़े से बड़े स्टेट की। सो नेचुरली इट विल बी हायर, बट ऑल आई एम सेइंग इज यू डोंट हियर ऑफ अतीक अहमद, यू डोंट हियर ऑफ अफरोज, यू डोंट हियर ऑफ ऑल दोस अदर फेलोज, मुख्तार अंसारी और पता नहीं कौन सा ये वो दगड़ू ये वो पांडे मिश्रा, पता नहीं कौन कौन से वो गैंग हुआ करते थे सर वहां पे। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो आदमी ने किया वो तो किया ही है ना, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ज्यादा आप बकवास करेंगे तो बुलडोजर आ जाएगा तुम्हारे घर के सामने। मैं वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अगर पृथ्वीराज चौहान साहब अभी यूपी में होते बुलडोजर बन जाता उनके घर के सामने, वेरी फ्रैंकली। लेकिन जहां तक पृथ्वीराज चौहान साहब का सवाल है, वो जरा अपनी मानसिक हालत का मतलब वो जांच करवा लें, क्योंकि I don't think he'll make such a big statement without the High Command knowing that he's going to say something. I think he will. He's a very bureaucratic person. I am shocked at what he said. Anyway, you are trying to run down your own Indian Air Force and you're trying to run down your own Indian Armed Forces. Shame on you. That's all that I can say. And you are providing, ammunition to the stupid, in fact, clownish Pakistanis. He can stand in an election in Pakistan and win. बिल्कुल कराची में सर खड़े हो जाओ आप, जीत जाओगे। He cannot win कराची from में, here. लाहौर में जीत जाओगे। या तो जीत नहीं पाएंगे, बट वहां जरूर जीतेंगे। जाइए ना पृथ्वीराज चौहान साहब, बहुत बड़ा काम किया है आपने, वेरी गुड। You have provided ammunition, which is actually blank. There is no ammunition, very frankly speaking. You have actually provided blanks. मेरा ये कहना है कि इंडियन एयरफोर्स ने बिफोर आफ्टर पिक्चर्स प्रोवाइड करी कि पहले एयरपोर्ट ऐसा दिखता था और हमारे अटैक के बाद ऐसा है, पहले ऐसा दिखता था हमारे अटैक के बाद ऐसा है। वो सब इन भाई साहब को दिखानी, पृथ्वीराज चौहान साहब को वो नहीं दिखा। एग्जैक्टली व्हाट द पाकिस्तानी यूट्यूबर्स डू, ही इज डूइंग एग्जैक्टली दैट। तो आई एम सरप्राइज्ड, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, कोई बड़ी बात नहीं है कि गल्फ के द्वारा इनको कुछ मिला हो या कुछ मिला हो, कोई बड़ी बात नहीं। बिजनेस इंटरेस्ट, मतलब क्या ये क्या है, मतलब दिस इज लाइक आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन। द कांग्रेस डूइंग दिस, कांग्रेस के बारे में आप बाकी सब कह सकते थे, कांग्रेस को देशद्रोही नहीं बोल सकते थे साहब, लेकिन अब तो वो डिस्क्रिप्शन, वो परिभाषा भी अब कांग्रेस में लागू हो गई है।
all thanks to this man. And very unfortunately, he happens to be from Maharashtra, which is really and truly sad. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ रहे इतनी देर के लिए. आप लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर भेजें. एक बार फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. We need to hit at least 1 crore. जितना जल्दी से जल्दी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को. प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.